Good evening, everyone. Welcome to today's session. Let us start our session with a meditation. Sit comfortably. Now, start breathing. Take a deep breath in, deep breath out. While exhaling, leave all your tension. Leave all the negativities, all the tiredness. And as you inhale, feel the freshness, the positivity surrounding you in the nature, the environment, the five elements. Be grateful for the nature. Be grateful for all the life. Be grateful for your existence. Be grateful to God for making you. As we have read in yesterday's session, there is one life form present, one eternal life form present in all the creation. That is God. Feel God's presence deeply within you. Let us start feeling His presence inside us and all the living creatures. That is called true love. Now affirm, I am a being of love and life. I am God's child. I am enough. Everything is perfect, whole, and complete. All is well in my world. Om Shanti. Now let me share the screen and start today's session. Is the screen visible to all? Thank you, sister. Today we will start from however every crisis represents not only danger but also opportunity. So let us take a recap what we have learned yesterday. We were doing the chapter Enlightened Relationships, and we have seen our patterns, why we become addictive to material things, to persons, and how we can shift from addictive to enlightened relationships. The author has described it very beautifully. We were doing this heading relationships as a spiritual practice. This is one of the solutions how we can become enlightened in our relationships. And today we will start, however, every crisis represents not only danger but also opportunity. क्या होता है कि जितने भी क्राइसिस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डेंजर नहीं रिप्रेजेंट करता, वो एक अपॉर्चुनिटी भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने 2-3 दिन पहले सेशन में क्या देखा था कि जो कभी रिलेशनशिप के इनिशियल फेजेस में
जब सब कुछ हैप्पी हैप्पी फील होता है उस टाइम भी जो हमारे अंदर का फियर, पेन, जो भी नेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, वो अंडरलाई करती है उस हैप्पीनेस के। वो रिमूव नहीं होती है, वो कहीं जाती नहीं है, बस उस टाइम वो हैप्पी वाला हमें ज्यादा फील होता है, वो पेन नहीं फील होता है। लेकिन जब कोई ऑपोजिट बिहेव करता है, हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं रहता, तो उस टाइम वो जो पेन, हमारा खुद का पेन ऑलरेडी जो कि प्रेजेंट था, वो ऊपर सरफेस करने लग जाता है, हमें दिखने लग जाता है, और इस टाइम वो और ज्यादा स्ट्रांग होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, अपने पेन के लिए सामने वाले को ब्लेम कर देते हैं। इस सेशन से मैंने खुद ने यही सीखा कि वो जो नेगेटिविटी होती है ना, वो उसके लिए तो हमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, पर उस टाइम क्या होता है जब वो ब्रिंग आउट करता है, वो जो कुछ एक स्टिम्युलस की तरह एक्ट करता है, वो नेगेटिविटी, वो पेन, वो ब्रिंग आउट करता है हमारे अंदर से, तब हमें समझ आता है कि हाँ, ये हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो इस चीज को हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख सकते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, हमने खुद को खुद से जाना है। और जैसे कहते हैं ना, ट्रू लव हैज नो ऑपोजिट, अगर हम ये चीज भी रियलाइज कर लें कि हमारे अंदर भी ये चीज थी, ये पेन था, ये फेयर था, तो अब हमें इसको हील करना है। जिस दिन हम ये चीज रियलाइज कर लेंगे, तो वो भी ट्रू लव ही कहलाएगा, क्योंकि उस टाइम भी हम किसी और को वो पेन नहीं देना चाहते हैं, इसलिए तो हम खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी खुद को अप्रिशिएट हमें करना चाहिए, क्योंकि जब हम अप्रिशिएट करेंगे तो हमारी सोल पावर और ज्यादा इंक्रीज होगी, जैसे कि हमने बीइंग लव में पढ़ा था। जितने भी लाइफ में कोई क्राइसिस आते हैं उनको डेंजर की तरह नहीं, उसको अपॉर्चुनिटी की तरह हमें देखना चाहिए। If relationships energize and magnify egoic mind patterns and activate the pain body, as they do at this time, why not accept this fact rather than try to escape from it? Relationships energize and magnify egoic mind patterns and activate the pain body as they do as at this time. Why not accept this fact rather than try to escape from it? जब रिलेशनशिप्स की वजह से हमारे इगोइक माइंड पैटर्न्स है, जो पेन और प्लेजर वाला साइकिल रिपीट होते रहता है, वो जो मैग्नीफाई होगा कि कोई छोटी सी भी चीज हमें बड़ी दिखती है, कोई पेन, कोई फियर, तो उस टाइम पे वो पेन बॉडी एक्टिवेट हो जाता है। तो ऑथर बोल रहे हैं कि इस चीज को हम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, इसको एस्केप करने की कोशिश क्यों करते हैं? व्हाई नॉट कोऑपरेट विद इट इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग रिलेशनशिप्स और कंटिन्यूइंग टू परस्यू द फैंटम ऑफ एन आइडियल पार्टनर एज एन आंसर टू योर प्रॉब्लम्स और अ मींस ऑफ फीलिंग फुलफिल्ड। तो हम उस चीज के साथ में कोऑपरेट भी कर सकते हैं, वरना कुछ लोगों में फेयर हो जाता है, तो वो रिलेशनशिप्स को ही अवॉइड करने लग जाते हैं कि नहीं, हमें और रिलेशनशिप्स में जाना ही नहीं है, क्योंकि फिर से वो पेन वाला साइकिल, मतलब पेन वाला फेज आएगा। तो वो अवॉइड करना में कोई सोल्यूशन नहीं है। और एक आइडियल पार्टनर, जब हम एक्सटर्नली कुछ खोजने लग जाते हैं कि हाँ, एक पार्टनर आएगा, ऐसा आएगा आइडियल जिसके आने से मेरी लाइफ फुलफिल हो जाएगी, तो वो एक्सटर्नल फुलफिलमेंट खोजने की जगह हम खुद ही उसके साथ में कोऑपरेट क्यों नहीं करते? The opportunity that is concealed within every crisis does not manifest until all the facts of any given situation are acknowledged and fully accepted. जो अपॉर्चुनिटी है ना, हर एक क्राइसिस के अंदर में एक अपॉर्चुनिटी कंसील्ड होती है, छुपी हुई एक अपॉर्चुनिटी होती है, does not manifest until all the facts of any given situation are acknowledged and fully accepted. मतलब हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है, हमें क्या करना है, उसको फुल्ली एक्सेप्ट करना है, उसको एक्नॉलेज करना है, तब जा करके हमें उसके अंदर में जो अपॉर्चुनिटी है, जो ग्रोथ हमें मिलने वाला है, जो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आगे हम उस टाइप के सिमिलर सिचुएशन से बेटर डील कर पाएंगे और लोगों को हेल्प कर पाएंगे। ये जो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, वो हमें तभी दिखेंगी
जब हम उस सिचुएशन को फुल्ली एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज करेंगे. As long as you deny them, as long as you try to escape from them, or wish that things were different, the window of opportunity does not open. जब तक हम उस सिचुएशन को, उस पेन को जब तक हम डिनाई करते रहेंगे, जब तक हम उससे बचने की कोशिश करते रहेंगे, जब तक हम विश करेंगे कि ये चीजें जो है ये ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, किसी और तरह से होनी चाहिए, मतलब जो हमारे साथ हो गया अब तक, इस प्रेजेंट मोमेंट तक, उसके लिए हम ऐसे विश जब तक करते रहेंगे ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, इसका मतलब क्या है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. मतलब जो जैसा हुआ है अभी तक उसको हम वैसा ही एक्सेप्ट करें, उसको डिनाई नहीं करें, उससे एस्केप करने की कोशिश नहीं करें. जब हम फुल्ली उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तभी वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन अप होगी. And you remain trapped inside that situation which will remain the same or deteriorate further. अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो सिचुएशन में हम खुद को देख रहे हैं, जिसको हम क्राइसिस समझ रहे हैं, हम उसी के अंदर ट्रैप्ड रहेंगे और वो सिचुएशन बद से बदतर हो जाएगी. इसलिए हमें उसको जो जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. With the acknowledgement and acceptance of the facts also comes a degree of freedom from them. जब हम उसको acknowledge करते हैं और accept करते हैं तो फिर क्या होता है, हमें freedom मिलती है उससे. For example, when you know there is disharmony and you hold that knowing, through your knowing, a new factor has come in, and the disharmony cannot remain unchanged. ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है कि जब हम ये जानते हैं कि डिसहार्मनी एंड यू होल्ड दैट, तो हम ये जानते हैं थ्रू योर नोइंग अ न्यू फैक्टर हैज कम. जब हम ये जानेंगे ना तो एक न्यू फैक्टर आ जाएगा और फिर वो डिसहार्मनी चेंज हुए बिना नहीं रह सकती. When you know you are not at peace, your knowing creates a still space that surrounds your non-peace in a loving and tender embrace and then transmutes your non-peace into peace. जब कई बार होता है ना मन अशांत रहता है, शांत नहीं है, तो उस टाइम हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, मतलब जानना है कि हम अभी पीस में नहीं है. तो वो जानने से क्या होगा, जानने से एक स्टिल स्पेस क्रिएट होगा हमारे अंदर में, एक स्थिर पूरा, जो कि हमारी नॉन पीस को, जो अशांति है उसको सराउंड कर लेगा. वो स्टिल स्पेस उसको कैसे सराउंड करेगा, एक लविंग और टेंडर एम्ब्रेस के साथ में सराउंड करेगा. और फिर वो जो नॉन पीस को उस स्टिल स्पेस में सराउंड कर रखा है तो वो उसको ट्रांसम्यूट कर देगी इनटू पीस. As far as inner transformation is concerned, there is nothing you can do about it. Inner transformation, you cannot transform yourself and you certainly cannot transform your partner or anybody else. All you can do is create a space for transformation to happen, for grace and love to enter. मतलब बता रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं. हम ना खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ना अपने पार्टनर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किसी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते. लेकिन हम एक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो ट्रांसफॉर्मेशन हो पाए फॉर ग्रेस एंड लव टू एंटर, ताकि ग्रेस और लव उसमें एंटर करे, क्योंकि ग्रेस और लव हर एक सिचुएशन को बेहतर बना सकती है. जैसे क्या कहा, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. जब डिसहार्मनी होगी तो एक्सेप्ट करना, मतलब जानना है कि हाँ डिसहार्मनी है. जब नॉन पीस में होंगे तभी भी वो चीज जाननी है. उससे क्या होगा, अंदर में एक स्टिल स्पेस क्रिएट होगा. वो हमारी नॉन पीस को, डिसहार्मनी को, वो उसको सराउंड कर लेगा लविंग और टेंडर एम्ब्रेस में, और उसके बाद में वो चीज ट्रांसम्यूट हो जाएगी into harmony and peace respectively. So whenever your relationship is not working, whenever it brings out the madness in you and in your partner, be glad.
तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भी हमें लगे कि हमारा रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है, जब भी हमें ऐसा लगे कि मतलब कई बार हो जाता है ना कि रिएक्शन निकल जाता है, हम रिएक्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग, हम रिएक्ट कर देते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, बहुत ज्यादा हर्ट हो गए, तो कुछ क्या ऐसी बातें बोल दी, कुछ ऐसा कर दिया। तो जब भी ऐसा हो ना कि हमारे खुद के अंदर से कुछ वैसा निकल जाए रिएक्शन, या फिर सामने वाले के अंदर से निकल जाए, तो ऑथर कह रहे हैं उस टाइम हमें ग्लैड होना है, ग्रेटफुल होना है। What was unconscious, जो भी अनकॉन्शियस पार्ट हमारे अंदर था, अनकॉन्शियस पार्ट वो चीज बाहर आ गया, लाइट में आ गया, मतलब हमारी अटेंशन में आ गया कि हाँ ये चीज अंदर थी। इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्वेशन, तो इसको हमें एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्वेशन देखना है। एवरी मोमेंट होल्ड द नोइंग ऑफ दैट मोमेंट, particularly of your inner state। ऑथर कह रहे हैं हर एक मोमेंट में हमें ये खुद को जानना है कि हाँ क्या हो रहा है, उसको नो करना है, एक्सेप्ट करना है, नोइंग करना है। पर्टिकुलरली किस चीज के लिए? अपनी इनर स्टेट के लिए। इनर स्टेट हमारी कैसी है? इफ देयर इज एंगर, नो दैट देयर इज एंगर। इफ देयर इज जेलसी, डिफेंसिवनेस, द urge to argue, the need to be right, an inner child demanding love and attention, or emotional pain of any kind, whatever it is, no, चाहे कुछ भी हो, हमारे अंदर इनर स्टेट को पर्टिकुलरली हमें ध्यान रखना है, उसको एक्सेप्ट करना है जो जैसा है। हाँ एंगर है तो हाँ एंगर, जेलसी है, डिफेंसिवनेस है, आर्ग्यू करने का एक अर्ज आ रहा है, वी नीड टू बी राइट, जो इनर चाइल्ड है हमारा वो लव एंड अटेंशन डिमांड कर रहा है। कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी हो, तो हमें ये जानना है रियलिटी क्या है उस मोमेंट, उस मोमेंट की रियलिटी को हमें जानना है कि रियलिटी क्या है, हमारी अभी स्टेट कैसी है। और उस नोइंग को हमें होल्ड करना है कि हाँ ये चीज हमारे अंदर अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट में, इस प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट है। द रिलेशनशिप देन बिकम्स योर साधना, योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। इससे क्या होगा, हमारी जो रिलेशनशिप है वही हमारी साधना बन जाएगी। और साधना का मतलब क्या होता है? हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। साधना हम बोलते हैं ना जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना साधना करते हैं, वैसे ही कहा जाता है ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी ये। If you observe unconscious behavior in your partner, hold it in the loving embrace of your knowing so that you won't wear। अगर आपने अपने पार्टनर में कोई अनकॉन्शियस बिहेवियर नोटिस करा, ऑब्जर्व करा, तो उसको हमें होल्ड करना है। होल्ड कैसे करना है? जैसे ऑथर ने बोला कि जब हम उस चीज को जानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये ऐसा है, तो उसको होल्ड करने से क्या होगा, वो एक लविंग इम्प्रेस ऑफ नोइंग, तब उसमें लव और ग्रेस एंटर करेगा और उस एक अनकॉन्शियस बिहेवियर को वो सराउंड कर लेगा। और ऐसा करने से क्या होगा, इसकी वजह से अगर पार्टनर का अनकॉन्शियस बिहेवियर है उसको हमने एक्सेप्ट करा, इनके अंदर में ये चीज है, अनकॉन्शियस जो पार्ट था वो लाइट में आ गया। जब हम इस तरह से ये साधना करेंगे, तो फिर हम हमारे पार्ट से क्या होगा कि हम रिएक्ट, हम सामने वाले को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, खुद को तो कर सकते हैं, तो उस टाइम हम रिएक्ट नहीं करेंगे। अनकॉन्शियसनेस एंड नोइंग कैन नॉट को एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग। ऐसा करने से क्या होगा, जब हम नोइंग रखेंगे, नोइंग वाला पार्ट, तो जो अनकॉन्शियसनेस है हमारी वो और जो नोइंग है वो एक साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, या तो अनकॉन्शियसनेस रहेगी या तो नोइंग रहेगी। तो अगर नोइंग रहेगी मतलब अनकॉन्शियसनेस चली गई, इवन इफ द नोइंग इज ओनली इन द अदर पर्सन एंड नॉट इन द वन हु इज एक्टिंग आउट द अनकॉन्शियसनेस। मतलब अगर ऐसा हो कि आपके अंदर में नोइंग है और सामने वाले के अंदर अनकॉन्शियसनेस है, तभी भी वो नोइंग ही रह जाएगी।
The energy form that lies behind hostility and attack finds the presence of love absolutely intolerable. If you react at all to your partner's unconsciousness, you become unconscious yourself. But if you then remember to move your action, nothing is lost. ऑथर बता रहे हैं कि जो एनर्जी फॉर्म है जो हॉस्टिलिटी और अटैक के बिहाइंड होती है वो फिर क्या करेगी, उसमें प्रेजेंस ऑफ लव हमें फील होने लगेगा और उस प्रेजेंस ऑफ लव की वजह से वो जो अटैक करने वाली एक जो रिएक्ट करने वाली जो एक अर्ज आ रही थी वो लव अगर वहां पे रहेगा तो फिर हम अटैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि अटैक के लिए इनटॉलरेबल है लव। लव को टॉलरेट नहीं कर सकता अटैक। मतलब कि अगर सामने वाला अनकॉन्शियस है और हमने ये जान लिया है, हमारे अंदर नोइंग है, तो फिर क्या होगा, हमारे अंदर एक इनर चेंज आएगा ना। तो वो फिर जो अनकॉन्शियसनेस वाला उनका पार्ट है उसको वो लविंग एम्ब्रेस, एक हमारे अंदर की स्टिलनेस वो पूरे उसको सराउंड कर लेगी और फिर हमारे अंदर से वो रिएक्शन नहीं जाएगा। अगर हम रिएक्ट नहीं करेंगे अपने पार्टनर के अनकॉन्शियसनेस में तो हम भी अनकॉन्शियस नहीं होंगे। अगर हम ये याद रखें कि हमारा जो रिएक्शन होगा हम सिर्फ उसको जान लें तो फिर कुछ भी हम लूज नहीं करेंगे। Humanity is under great pressure to evolve because it is our only chance of survival as a race. ह्यूमैनिटी जो है उसमें वो बहुत ही ग्रेट प्रेशर में है कि वो इवॉल्व करे क्योंकि हमारी सर्वाइवल का सिर्फ यही एक चांस होता है। This will affect every aspect of your life and close relationships in particular. और इस वजह से क्या होता है, हमारे लाइफ के जितने एस्पेक्ट होते हैं वो सब अफेक्टेड होते हैं क्योंकि एक ग्रेट प्रेशर है हमारे अंदर इवॉल्व करने का। और इसमें क्लोज रिलेशनशिप्स पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। नेवर बिफोर हैव रिलेशनशिप बीन एज प्रॉब्लमेटिक एंड कॉन्फ्लिक्ट रिडन एज दे आर नाउ। ऑथर बता रहे हैं कि रिलेशनशिप्स में इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स कॉन्फ्लिक्ट कभी भी नहीं रहे जैसे कि इस टाइम पे हैं। एज यू मे हैव नोटिस्ड दे आर नॉट हियर टू मेक यू हैप्पी और फुलफिल्ड। If you continue to pursue the goal of salvation through a relationship, you will be disillusioned again and again. तो अगर हम नोटिस करेंगे तो रिलेशनशिप इस वजह से नहीं होते ताकि हम हैप्पी और फुलफिल्ड फील कर सके। जो एक परस्यू करने का जो हमारा गोल होता है, कोई भी अगर हमारा गोल है, सेल्वेशन का गोल है, तो वो किसी भी रिलेशनशिप के थ्रू हम परस्यू करने जाएंगे तो बार बार हम डिसल्यूशनड ही होंगे, उससे हमें सेल्वेशन नहीं मिलेगा। बट इफ यू एक्सेप्ट दैट द रिलेशनशिप इज हियर टू मेक यू कॉन्शियस इंस्टेड ऑफ हैप्पी, then the relationship will offer you salvation. मतलब अगर हम ये एक्सेप्ट करें कि रिलेशनशिप से हमें salvation नहीं मिलेगा पर रिलेशनशिप से हम चीज बन जाएंगे इंस्टेड ऑफ हैप्पी। हैप्पी होने की जगह रिलेशनशिप हमें कॉन्शियस बना रहा है, तब फिर वो रिलेशनशिप क्या होगा, वो हमें salvation ऑफर करेगा। And you will be aligning yourself with the higher consciousness that wants to be born into this world. और फिर क्या होगा, हम अलाइन करेंगे हायर कॉन्शियसनेस के साथ में। फॉर दोज हु होल्ड ऑन टू द ओल्ड पैटर्न्स देयर विल बी इंक्रीजिंग पेन, वायलेंस, कंफ्यूजन एंड मैडनेस। जो लोग ओल्ड पैटर्न्स को होल्ड ऑन करते हैं उसमें फिर क्या होगा, ओल्ड पैटर्न्स में पेन, वायलेंस, कंफ्यूजन, मैडनेस ये सब इंक्रीज होता रहता है। अभी सीकर का क्वेश्चन, I suppose that it takes two to make a relationship into a spiritual practice as you suggest. For example, my partner is still acting out of his patterns of jealousy and control. I have pointed this out many times, but he is unable to see it. सीकर पूछ रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि एक रिलेशनशिप को अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हमें लेकर आना है तो फिर दोनों पार्टनर्स की जरूरत है, दोनों को ही ये चीज करना होगा। और इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि इन्होंने अपने पार्टनर को कई बार
ये चीज बताने की कोशिश करी है कि वो जो पैटर्न्स ऑफ जेलसी और कंट्रोल है उससे वो बार बार एक्ट करते हैं, पर इनके पार्टनर वो चीज देख ही नहीं पाते। हाउ मेनी पीपल डज इट टेक टू मेक योर लाइफ इनटू अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस? नेवर माइंड इफ योर पार्टनर विल। ऑथर बोल रहे हैं कि आपकी खुद की लाइफ अगर आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में साधना में बदलना है तो कितने लोगों की जरूरत है? इसकी कोई जरूरत नहीं है कि हमारा पार्टनर हमारे साथ कोऑपरेट करे। सैनिटी, कॉन्शियसनेस कैन ओनली कम इनटू दिस वर्ल्ड थ्रू यू। वर्ल्ड में अगर हमें सैनिटी और कॉन्शियसनेस लेकर आनी है तो वो हमारे से आ जाएगी। यू डू नॉट नीड टू वेट फॉर द वर्ल्ड टू बिकम sane or for somebody else to become conscious before you can be enlightened. अपने एनलाइटनमेंट से पहले हम ऐसे वेट नहीं कर सकते कि सामने वाला कॉन्शियस हो जाए, सामने वाला सेन हो जाए, वर्ल्ड पूरा सेन हो जाए। नहीं, यू मे वेट फॉर एवर। अगर हम ऐसे वेट करेंगे तो हम तो वेट करते ही रह जाएंगे। डू नॉट अक्यूज ईच अदर ऑफ बीइंग अनकॉन्शियस। जब आप खुद अनकॉन्शियस हो तो आप ऐसे सामने वाले को अक्यूज नहीं कर सकते कि वो अनकॉन्शियस है, इसलिए हम भी अनकॉन्शियस है। The moment you start to argue, you have identified with a mental position and are now defending not only that position but also your sense of self. जिस मोमेंट पे हम आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देते हैं उस टाइम क्या होगा? उस टाइम हम अपने मेंटल पोजीशन के साथ आइडेंटिफाई कर देते हैं, हम माइंड के साथ आइडेंटिफाइड रहते हैं उस वक्त, और फिर हम डिफेंड करते हैं अपनी उस मेंटल पोजीशन। मेंटल पोजीशन मतलब जो इमेज हमने खुद से क्रिएट करी है अपने बारे में, अपने एक्सटर्नल अचीवमेंट्स को, पोजीशंस को, बाकी और सोशल स्टेटस वगैरह जितनी चीजें हैं उस हिसाब से हम अपनी एक मेंटल इमेज क्रिएट करते हैं। फिर हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमें हमें मतलब हमारे साथ में लोग ऐसे व्यवहार करें, ऐसे बिहेव करें। तो उस मेंटल पोजीशन को हम एक क्रिएट करके रखते हैं, और जब हम माइंड के साथ आइडेंटिफाइड रहते हैं तो हम उस मेंटल पोजीशन को ही डिफेंड करने की कोशिश करते हैं लोगों के साथ। और हम सोचते हैं ये जो मेंटल पोजीशन जो हमने क्रिएट कर रखी है यही हमारी ट्रू सेल्फ, द ईगो इज इन चार्ज। इस टाइम क्या होता है? जब हम आइडेंटिफाइड रहते हैं माइंड के साथ में तो हमारा जो ईगो है वो इन चार्ज होता है। यू हैव बिकम अनकॉन्शियस, और हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। एट टाइम्स इट मे बी अप्रोप्रिएट टू पॉइंट आउट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ योर पार्टनर्स बिहेवियर। इफ यू आर वेरी अलर्ट, very present, you can do so without ego involvement, without blaming, accusing, or making the other wrong. तो ऑथर बता रहे हैं कि आप उनको पॉइंट आउट करो, अपने पार्टनर के बिहेवियर के कुछ एस्पेक्ट्स को पॉइंट आउट करो, पर अगर आप बहुत अलर्ट हो, बहुत प्रेजेंट हो, तो फिर आप ये पॉइंट आउट करोगे लेकिन ईगो इन्वॉल्वमेंट के बिना पॉइंट आउट करोगे। ईगो इन्वॉल्वमेंट जब आती है तब हम जज करते हैं, ब्लेम करते हैं, एक्यूज करते हैं और दूसरे को गलत ठहराते हैं। और जब ईगो इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो ये सब नहीं होता। हमारी बस प्योर इंटेंशन होती है कि हम सामने वाले का भी भला चाहते हैं और हम उनकी भलाई के लिए उनको बस ये चीजें कहते हैं। When your partner behaves unconsciously, relinquish all judgment. जब आपका पार्टनर अनकॉन्शियसली बिहेव करे तब आपको सारी जजमेंट को छोड़ देंगे, कुछ जजमेंट नहीं रखनी है उनके। जजमेंट इज ईदर टू कंक्लूड समवन्स अनकॉन्शियस बिहेवियर विथ who they are, or to project your own unconsciousness onto another person and mistake that for who they are. जजमेंट क्या करती है? कंफ्यूज करती है किसी और के अनकॉन्शियस बिहेवियर को, वो कौन है उसके साथ। मतलब कोई अगर हमें पैटर्न किसी के अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है, कुछ एक्ट उन्होंने किया वो गलत, ठीक, तो अभी क्या हो रहा है कि वो जो पर्सन है, वो जो बीइंग है, वो बीइंग ऑफ लाइट, बीइंग ऑफ लव, प्योर बीइंग है, स्पिरिचुअल बीइंग है, जो उसकी ओरिजिनल सेल्फ है। तो वो दे आर, तो वो बीइंग हो गई। लेकिन जब हम उनके एक्ट के वजह से, जो कि संस्कार बहुत सारे डिराइव होते होते आते हैं, अभी उस वजह से उन्होंने कुछ एक्ट करा, अगर हम उस एक्ट के बेसिस पे उन्हें जज करें कि ये तो है ही ऐसे, ये तो ऐसे ही करते हैं,
इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, इस टाइम हम कंफ्यूज कर रहे हैं उनकी जो एक ट्रू आइडेंटिटी है और अभी जो उनका एक्ट है उससे उन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और टू प्रोजेक्ट योर ओन अनकॉन्शियसनेस ऑन टू अनदर पर्सन एंड मिस्टेक दैट फॉर हू दे आर। या फिर हम क्या करते हैं, अपनी खुद की अनकॉन्शियसनेस को सामने वाले पर्सन के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं और फिर मिस्टेक करते हैं कि वो कौन है। To relinquish judgment does not mean that you do not recognize dysfunction and unconsciousness when you see it. जजमेंट छोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हम जो डिसफंक्शन है, मतलब अगर किसी ने कुछ गलत किया है, एक्ट अगर गलत है, उसको हम रिकॉग्नाइज ना करें और अनकॉन्शियसनेस को जब हम देख भी रहे हैं उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करें। जजमेंट रिलिंक्विश करने का ये मतलब नहीं है, इट मीन्स बीइंग द नोइंग rather than being the reaction and judge। मतलब जब हम बहुत अलर्ट कॉन्शियस है तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो बीइंग है वो नोइंग, वो जान रही है कि हाँ मतलब कि ये चीज है, इनके अंदर में ये अनकॉन्शियस वाला पैटर्न आया। और अगर हम मतलब कि ऐसा हम करें बीइंग द नोइंग rather than being the reaction, मतलब वो रिएक्शन के बेसिस पर हम उन्हें जज नहीं कर रहे हैं। You will then either be totally free of reaction or you may react and still be the knowing। तो इस टाइम पे क्या होता है, या तो हम टोटली फ्री ऑफ रिएक्शन हो जाते हैं, मतलब सामने वाला कुछ भी करे लेकिन हम रिएक्ट नहीं करते, या तो ऐसा हो जाता है, या फिर क्या होता है, हम रिएक्ट करते हैं पर फिर भी हमारे अंदर वो नोइंग होती है कि सामने वाले का भी अनकॉन्शियस रहा और मेरा भी अनकॉन्शियस रहा, तो वो एक नोइंग है। नोइंग से क्या होगा, लवर ग्रेस से उसको इम्प्रेस कर लिया जाएगा, इनर स्टिलनेस आएगी और फिर वो उसे ट्रांसम्यूट करेगा। द स्पेस इन विच द रिएक्शन इज वॉच्ड एंड अलाउड टू बी। नोइंग का मतलब क्या है, जो स्पेस है, एक इनर स्पेस हमारे अंदर का जिसमें जो रिएक्शन है उसको देखा जा रहा है और वॉच करने वाले क्या, बीइंग है। और उसको अलाउ किया जा रहा है कि हाँ वो वैसे रहे। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग द डार्कनेस यू ब्रिंग इन द लाइट। मतलब डार्कनेस से लड़ने की जगह हम क्या कर रहे हैं, हम लाइट को ब्रिंग आउट कर रहे हैं। मतलब अगर कुछ रिएक्शन, कुछ अनकॉन्शियसनेस दिखी भी तो हम उसमें भी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि हाँ ये ब्रिंग आउट होने की वजह से हमें पता चला कि हमें कहाँ कहाँ चेंजेस की, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू डिल्यूशन यू सी द डिल्यूशन गेट एट द सेम टाइम लुक थ्रू इट। इस डिल्यूशन में रिएक्ट करने की जगह हम क्या कर रहे हैं, हम इस डिल्यूशन को देख रहे हैं और इस डिल्यूशन के परे भी देख पा रहे हैं, इसके थ्रू भी हम देख पा रहे हैं, जो मतलब एक वॉचर जो है हमारे अंदर में इस रिएक्शन को जो वॉच कर रहा है। Being the knowing creates a clear space of loving presence that allows all things and all people to be as they are। Being the knowing का मतलब क्या है, एक clear space हम create करते हैं of loving presence। लविंग प्रेजेंस कैसे, क्योंकि हमारे अंदर एक्सेप्टेंस है, जो जैसे है वो वैसे रहे, वो एक अलाउंस हम क्रिएट कर रहे हैं। जो भी जैसे रहना चाहते हैं वो वैसे रहे और हम उनको completely एक्सेप्ट करते हैं। नो ग्रेटर कैटलिस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट। और इससे बड़ा कैटलिस्ट कोई हो ही नहीं सकता है ट्रांसफॉर्मेशन का। इफ यू प्रैक्टिस दिस योर पार्टनर कैन नॉट स्टे विथ यू एंड रिमेन अनकॉन्शियस। अगर हम इसको प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा पार्टनर हमारे साथ में रह करके अनकॉन्शियस रह ही नहीं सकता। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, अभी हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। Next is we will start from, if you both agree that the relationship will be good, फिर इसमें today's questions are,
The author says every challenge that a relationship contains is actually a disguised opportunity for salvation. ऑथर ने कहा कि जो हर एक चैलेंज होता है कोई भी रिलेशनशिप में, उसमें एक डिस्गाइज्ड अपॉर्चुनिटी होती है, एक छुपी हुई अपॉर्चुनिटी होती है हमारी सेल्वेशन के लिए। हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस? इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं? हैव यू ऑब्जर्व दिस इन योर पर्सनल लाइफ? क्या आपने इसको ऑब्जर्व किया है अपनी पर्सनल लाइफ में? Second question, according to the author, the light is too painful for someone who wants to remain in the darkness. What does it mean? How can you deal with such situation? ऑथर के अकॉर्डिंग जो लाइट होती है वो बहुत पेनफुल होती है किसी के लिए भी जो कि डार्कनेस में ही रहना चाहते हैं। यहाँ पे डार्कनेस क्या बता रहा है कि अनकॉन्शियस जो रहना चाहता है उसके लिए जो लाइट होती है वो बहुत पेनफुल होती है। इसका मतलब क्या है और कैसे हम इन टाइप की सिचुएशन के साथ में डील करेंगे? तो इन क्वेश्चंस का आंसर आप कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर सकते हैं, यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन।